Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So in this video I'm trying to solve one of the mock paper, that is mock paper second. उसका ड्राइव का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है. So let us start यार. I don't want to waste much of a time. So English you can go ahead यार. English you can do. So I am going to solve math section, alright. Math section that is, and I am going to provide the photos of that also. And in some of the mock papers there are some questions which are wrong also. Means the options are not provided in the 4 options. So don't worry, I am going to provide every answer of the question mock papers, ठीक है. So don't worry about that. And I am sorry for the background noise guys, please bear it, alright. And also I am going to provide the timing in which I am going to solve the question. You can check it out in the description also. 30th question, what it says is A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every 3rd day? So see, A, B and C, ठीक है. I am not going to solve it by a conventional method. I am just trying to solve it keeping time in consideration. 1 day, for 1 day कितना लगता है उनको? 1/20, ठीक है. As we have done 1/20, 1/30 and 1/60, ठीक है. अभी देखो फर्स्ट डे कितना काम करता है, कितना काम होता है? 1/20 ओनली, ठीक है, क्योंकि these two assist them on the 3rd day. तो सेकेंड डे कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/20, मतलब फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे, तो कम्स आउट टू बी 1/10, ठीक है. नाउ थर्ड डे A also works 1/20 प्लस B and C also works, तो 60. तो ये कितना हो जाएगा? 60 LCM है, तो 3 + 2 + 1/60. सो इट कम्स आउट टू बी 9, सॉरी कितना? 6/60, तो कम्स आउट टू बी 1/10, ठीक है. थर्ड डे 1/10 काम होता है, तो टोटल 3 days वर्क कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10, तो कम्स आउट टू बी 2/10, 1/5. सो 1/5 काम होता है 3 days में, ठीक है. तो एक पूरा काम कब होगा? 1/5 ऑफ द काम होता है, तो एक पूरा काम कितना होगा? 1 × 3/1/5, तो इट कम्स आउट 5 ऊपर आ जाता है, 3 × 15. 15 days में they will require to work, alright. So 15 days will require. So 15 days is the answer. So the 31st question which says is a man can row 9 1/3 km/h in still water and finds that it takes him thrice as much time to row up than as to row down at the same distance in the river. The speed of the current. This is a very simple question, all right. So let us see. Let x km/h be the speed, ठीक है. This is upstream, ठीक है. Let this is the upstream speed, upstream, ठीक है. एंड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन के हिसाब से थ्राइस, तो 3x हो जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव गिवन, स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है? x + 3x. हमको क्या दे रखा है? 9 1/3. 9 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये 2x हो जाएगा. 9 3 27, 28 29/3, 28/3 इस 2x 14. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/3, ठीक है. x मतलब अपस्ट्रीम की थी, तो ये अपस्ट्रीम की हो जाएगी, और डाउनस्ट्रीम की क्या हो जाएगी? 3x, तो 14 km/h. तो स्पीड हमको क्या पूछा है? स्पीड ऑफ करंट, तो 1/2 14 - 14/3, ठीक है. इट कम्स आउट टू बी 4 2/3. कर लेना है कैलकुलेट, मैंने पहले से कर रखा है, ठीक है. 4 2/3 is the answer. Fine. So the 32nd question which says is the speed of the boat in still water is 10 km/h. If it can travel 26 km downstream and 14 km upstream in the same time, the speed of the current is. The speed of the stream is. तो let speed of stream, इसको मैं x km/h एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है. सो बोट की स्पीड क्या दे रखी है? तो बोट स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम 10 + x, और बोट स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी? 10 - x, ठीक है. नाउ what it is saying is it travels 28 km downstream in the same time. टाइम सेम है, तो टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड
सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, तो और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, दे बोथ हैव सेम टाइमिंग t1 इज इक्वल्स टू t2, सो व्हाट कम्स आउट टू बी, सबसे पहले अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है डाउनस्ट्रीम का 26 डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम मतलब 10 प्लस x इज इक्वल्स टू, और अपस्ट्रीम क्या है 14, तो 14 डिवाइड बाय 10 माइनस x. When you go and solve this question, you will get x is equals 3 kilometer per hour. Now the next question is 33rd question, which says is if a sum becomes double in 16 years, how many times will it be in 8 years? ये इस you don't have to solve this question, ये थोड़ा लॉजिक से भी हो जाएगा. देखो, if the sum let's suppose say 100 rupees, ठीक है, 100 rupees is the sum in 16 years, what it becomes double मतलब 200 rupees, तो there is a increase in 100%, ठीक है, 16 ईयर्स में 100% इंक्रीज है, तो 8 ईयर्स में कितना इंक्रीज होगा 50%, तो 100 रुपीज का कम्स आउट टू बी 150 रुपीज. सो हाउ मच इज द इंक्रीज, दिस इज 1.5%, राइट, इज द इंक्रीज, सॉरी 1.5 टाइम्स आएगा ये, ठीक है, परसेंटेज टाइम्स इज द आंसर, 1.5 is the answer. Fine, simple, we'll go further. Now 34th question, which is says is in how many years will a sum of 800 rupees at 10% annum compounded semi-annually? Semi-annually is very important, alright, please keep that in mind. Semi-annually becomes rupees 926.10. So see, rate क्या दे रखा है अपने को, rate is 10% annual, ठीक है, एनुअल दे रखा है, बट हमको सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है, तो सेमी एनुअली कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा रेट, ठीक है, एंड वी नो अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 100 रेज़्ड टू पावर टाइम, ठीक है, तो अमाउंट कितना आया 926.10 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 800 रुपीज, 1 प्लस रेट अपना 5% सेमी एनुअली, तो t, ठीक है, हमको टाइम निकालना है, तो 926.10 बाई 800 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 बाई 100 इज 1 बाय 20 रेज़्ड टू पावर t, ठीक है, तो ये पॉइंट हटाया 00, 92610 बाई 80,000 इज इक्वल्स टू 21 बाई 20 रेज़्ड टू पावर t. नाउ इफ यू कैन कंसिडर दिस इज 21 बाई 20 का होल क्यूब is 21 by 20 raised to power t. So t comes out to be 3. Fine. But remember the thing. We have taken it as semi compounded. तो 3 जो आएगा ये हाफ ईयर्स आएगा. 3 हाफ ईयर्स. 3 हाफ ईयर्स मतलब t 1.5 ईयर्स. ठीक है. This is a small thing which you have to take care. All right. I don't want you to finish here. 3 years मत लिख देना. ठीक है. Read the question carefully for that. So the answer is कहाँ गया? 1.5 years. This is the right answer. Fine. B option. We'll go for next. The next question is 35th. As A sells 2 TV sets, one at a loss of 15% and another at a profit of 15%. Find the loss gain percentage in the overall transaction. So see. Okay. 35th. See. अभी देखो इसमें हम let price assume कर लेते हैं हम ₹100. ठीक है. 100 प्राइस assume करते हैं तो 2 TV का कितना प्राइस हो जाएगा? 2 TV SP is 200 rupees. ठीक है. नाउ फर्स्ट ही सेल्स इट फॉर 15% लॉस, तो 85 रुपीज में बेचता है वो. ठीक है. और सेकेंड ही सेल्स इट फॉर 15% प्रॉफिट. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? एसपी इज ₹115. तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल एसपी दिस इज कॉस्ट प्राइस यार. ठीक है. कॉस्ट प्राइस. सो टोटल एसपी इज 200. सो प्रॉफिट और लॉस कितना? 200 बाय 200 इंटू 100 इज नो प्रॉफिट नो लॉस यार. ठीक है. 200 में खरीदा, ये नहीं आएगा जो भी है. ठीक है. 200 में खरीदा, 200 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस. फाइन. The next 36th question is a man travels from point A to point B at a rate of 25 km per hour and walk back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance from A to B is. सिंपल क्वेश्चन है यार, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं. ठीक है. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेट द डिस्टेंस बी एक्स. ठीक है. सो क्या कह रहा है? ए बी 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है? वो कहाँ गया? या 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. ठीक है. तो लेट अस सी द होल जर्नी टू की टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 5 hours 48 minutes. तो 5 + 48 by 60, तो इट कम्स आउट टू बी 12 4s are 12, 5s are 25, 29 by 5 hours.
ठीक है, ये हो गया अपने को, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर इट रिक्वायर्स फ्रॉम टाइम इज इक्वल्स टू एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या है 25 प्लस एक्स डिवाइड बाय 4, तो टाइम क्या अपना 29/5 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 25x अपॉन 25 into 4, so it comes out to be 5 5s and 29 is equals to 29x by 5 4s are 20, तो 29 से 29 कैंसिल, x comes out to be 20, ठीक है। क्या पूछा था अपने को, डिस्टेंस x is 20 kilometers, fine is the answer. So now 37th question, what it says is train का question है, a train traveling at a uniform speed clears a platform 200 meter long in 10 seconds and passes a telegraph post in 5 seconds. The speed of the train is, the speed of the train is uniform, ठीक है। सबसे पहले वो एक प्लेटफॉर्म लेट, ठीक है, देखो लेट द प्लेटफॉर्म लेंथ भी हम उसको जो भी है हम x किलोमीटर x मीटर सपोज करते हैं, फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, a train traveling at a uniform speed clears a platform, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, टोटल डिस्टेंस 200 लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म लेंथ, फाइन। एंड देन उसके बाद उसको क्या है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड्स, ठीक है 10 सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज डिस्टेंस 200 प्लस x बाय 10, फाइन। ये फर्स्ट केस। अभी फ्लैग पोस्ट का, फ्लैग पोस्ट की लेंथ नेग्लिजिबल है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन 200 मीटर और टाइम क्या है उसका 5 सेकेंड्स, ठीक है 5 सेकेंड्स, सो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 200 बाई 5, 5 1 5 40, सो क्या हो जाएगा, अभी दोनों का स्पीड सेम है तो कंपेयर कर लूँगी नहीं 40, तो 200 प्लस x कर लिया मैंने कंपेयर, तो x comes out to be 200. Now length of the platform हमको निकालना क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है अपने को, स्पीड ये लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल लो यार, यहाँ पर पुट कर दे जो भी है, स्पीड इज इक्वल्स टू इज 200 प्लस 200 बाई 10, सो 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी अपने को मीटर पर सेकेंड में निकालना है, ठीक है मीटर पर सेकेंड में, फाइन। नाउ द थिंग इज ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी वरीड, यू आर राइट मीन्स यू आर राइट, बाहर में जाए बाकी दुनिया, ठीक है या। और इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो इट कम्स आउट टू 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Now 38th question, what it says is the price of the sugar is increased by 20% due to the festive season. By what percentage should a family reduce the consumption of sugar so that there is no change in the expenditure? Now you don't have to go with the conventional approach in this question. I have told you, I have taught you a short trick also. कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, वो जाके वीडियो देखना, उसमें समझ में आएगा, फाइन। वो जो भी है आप उधर जाके देखना, आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो 38, ठीक है 38 क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज बाय 20%, तो 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसको कितना डिक्रीज करना है, हाउ मच दे वांट टू डिक्रीज, दैट इज x%, ठीक है, डिक्रीज करना है इसलिए माइनस प्लस 20 इंटू माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0, सो एज टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, उनका एक्सपेंडिचर 0 हो। तो ये फॉर्मूला जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैं वीडियो बताया आपको, ठीक है फाइन। सो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 20x बाय 100 इज इक्वल टू 0, सो 20 इज इक्वल्स टू x प्लस x बाय 5, सो 20 इज इक्वल्स टू 6x बाय 5, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू x, तो x कम्स आउट टू 16.66%, या क्या निकाला था, या 16.66%, तो 16 आंसर में क्या है 16/3%, फाइन। विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now 39th question, what it says is A salary is 20% lower than B's salary, which is 15% lower than C's salary. By how much percentage is C's salary more than A's salary? कुछ नहीं है यार, इसमें क्या गंदा क्वेश्चन है। देखो A B C, ठीक है, इसमें सैलरी मेंशन नहीं किया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इस बंदे की सैलरी सबसे ज़्यादा, तो मैं इसको 100 रुपीज़ एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी सैलरी ये है। तो A सैलरी इज 20% लोअर देन B सैलरी, विच इज 15% लेस देन C सैलरी। सो B का जो है वो 15% लेस है, तो ये 85 रुपीज़ हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ A सैलरी इज 20% लोअर देन B सैलरी, तो मतलब A सैलरी 85 माइनस
20% of 85. So 85 minus 20 into 85 by 100. So 20 ones are 5 are 5 ones are 7. 85 minus 17 comes out 68 rupees. ठीक है, 68 रुपीज़ इसकी सैलरी हो गई. अभी क्या पूछा क्वेश्चन में, बाय हाउ मच परसेंट सी सैलरी मोर देन ए सैलरी. तो ये 68 मतलब कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है वो, 32, 68, 78, 88, 98, 32. तो 32 डिवाइड बाय 68 इंटू 100. सो इट कम्स आउट टू बी 47.05% यार. You can go ahead and calculate if you want to. Fine. Now the 40th question, right? 40th question, what it says is the average weight of 5 men is increased by 2 kg when one of the men whose weight is 60 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is similar kind of question I have solved. कार्ड में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है. The average weight, let average भी x मैं assume कर रहा हूँ, ठीक है. और वो बंदे 5 बंदे का है, तो sum of 5 divided by 5. तो sum of 5 दिस इज मैं ऐसा डिनोट करता हूँ, ठीक है. एस मतलब सम और 5 बंदों का, तो 5x 5 बंदों का 5x हुआ, ठीक है. ऑल्सो क्या किया है, क्या दिया है, इंक्रीज बाय 2 मतलब एवरेज इंक्रीज बाय 2 व्हेन वन ऑफ द मैन इज रिप्लेस बाय 60 kg. मतलब सम इज 5x, रिप्लेस किया एक बंदे को 60 से प्लस a, उस बंदे को रिप्लेस किया है, ठीक है. और डिवाइड बाय बंदे तो अपने पास 5 है. ये एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो 5x प्लस 5 टू 10 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 60 प्लस a. तो 5x से 5x कैंसिल, इस कम्स आउट टू बी a की जो वेट है वो 70 kg है. फाइन, डी ऑप्शन इज राइट. विल गो फर्दर. लास्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज इज 41th क्वेश्चन है, a and b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. लेट अस राइट 41. a and b can do a piece of work in 18 days. So 1 day work assume कर रहा हूँ, ठीक है. I don't want to write every freaking things at this time. So a and b can do is 1 by 18. b and c can do in 1 by 24 and 1 by 36 a and c can do. ठीक है. Now I'll add all this. This is a procedure. Fine. So I'll add तो 2a plus b plus c. This is 1 day work, हाँ. 1 day work. 1 day work. तो 1 by 18 प्लस 1 by 24 प्लस 1 by 36. ठीक है. सो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 18, 24, 36, 72 is the LCM. Fine. So 18 4s are 24 2s are plus 24 3s are 24 3s are 36 2s are. So 72 LCM आ गया. तो 4 plus 3 9 by 72 9 by 72. फाइन. इस और a प्लस b प्लस c और इंटू डिवाइड बाय 2, ये याद रखना, ठीक है. बस. और क्वेश्चन में क्या है, अभी अपने को क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज b अलोन कैन डू फिनिश द वर्क. तो b अलोन चाहिए, तो मेरे को a प्लस c के जो वैल्यू है अपने पास है, ठीक है. a प्लस b की वैल्यू जो है अपने पास क्या है, a प्लस c इज 1 by 36. तो b प्लस 1 by 36 इज इक्वल टू 9 by 72 144. ठीक है. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 by 144 माइनस 1 by 36. तो इसको जो भी सॉल्व करोगे यार आपको आ जाएगा, सॉल्व करते रहना, ठीक है. मेरे को भी सॉल्व नहीं करने का मन कर रहा. दैट इज 5 by 144 आएगा, ठीक है. 5 by 144. नाउ रिमेंबर दिस इज 1 डेज वर्क. फाइन. सो अपने को टोटल वर्क कितना आएगा इसका, रेसिप्रोकल, तो 144 by 5, तो इट कम्स आउट टू 5 2s are 10, 4 4 5 8s are 40.88. तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, 28 4 by 5 days. Fine. So this is it what I wanted to teach you at this moment. See, मैंने इसको 20 या 25 मिनट में सॉल्व किया है, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सॉल्व एवरीथिंग. फाइन. एंड देयर वाज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू रीड द क्वेश्चन ऑल्सो. So it is going to take less time for you also if you know every freaking things at that time, and you might be knowing क्योंकि अभी आपने प्रिपेयर कर चुका होगा मैथ्स का जो भी है, ठीक है. So that is it यार. These kind of question you can expect. These are all simple questions, ठीक है. If you start a chapter with that name, say suppose boards and streams, the question which has been asked in this mock paper is the starting question which you can study in the chapter also.
ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, नॉट अनलाइक CDS, उसमें थोड़े से हाई क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिंपल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यू कैन गो एंड स्कोर एज मच एज पॉसिबल फॉर मैथ्स सेक्शन, दैट्स व्हाई मैथ्स इज माय फेवरेट एंड आई कैन स्कोर very well in that. So yeah, that's it about this mock paper, and I hope that you have liked the video, and please guys do subscribe the video. It takes a lot of effort for me to make videos for you. Hit that like button and do share. Everyone has equal right to study. So COVID चल रहा है यार. I want you to stay safe and take care. Till then, I'll meet you in next video. Bye bye.